Okay, hello students. Uh, Today the topic of my lecture is basics of nuclear chemistry. This is from the syllabus of TYBSc semester 3rd 2014 pattern. So this is from the course CH336A nuclear chemistry. This is an optional course for the students of TYBSc which are following the curriculum of Savitribai Phule Pune University. So today we will discuss few basic things in nuclear chemistry. So let us start. First of all, what is nuclear chemistry? The definition of nuclear chemistry: it is the branch of chemistry that deals with the study of nuclear composition, nuclear properties and nuclear transformations. बेसिकली तीन चीज़ों में आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है. द न्यूक्लियर केमिस्ट्री कवर्स द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन, न्यूक्लियस किससे बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है अलग अलग, and nuclear transformations. After studying all its composition and properties, then how you can bring about nuclear reactions, how can you transform one nucleus into another. So these all studies are covered under nuclear chemistry. Now let us go ahead. Today we will just discuss the basic things which are needed in studying nuclear chemistry. So first of all, let us see composition of an atom. एक्चुअली हमको न्यूक्लियस का स्टडी करना है, तो उससे पहले न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो एटम के अंदर होता है. तो व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ एन एटम, एटम कैसे बना है. सो एज वी नो द एटम्स आर मेड अप ऑफ ए मैसिव टाइनी कोर at its center, which we call a nucleus, okay, and a large hollow spherical region around the nucleus in which electrons are present, that we call a outer sphere. उसको हम outer sphere कहते हैं. एटम के बीच में एक मैसिव छोटा सा टाइनी कोर होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड में जो एक बड़ा सा एरिया है उसको हम outer sphere कहते हैं. ओके, what nucleus contain? Inside the nucleus there are protons and neutrons. Okay, inside the nucleus there are protons and neutrons, and around the nucleus means outer sphere there are electrons. Okay, एटम बना है outer sphere और nucleus से. outer sphere में electrons होते हैं और जो nucleus के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ओके, बट नाउअडे ए मॉडर्न फिजिसिस्ट discovered that protons and neutrons are no more a indivisible particles, no more a fundamental particles of an atom. atoms जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, अब ये फंडामेंटल और इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं रहे, बल्कि ये भी डिविजिबल है और किसी और पार्टिकल से बने हैं. व्हाट आर दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज क्वार्क्स. ओके, protons and neutrons are made up of even a fundamental indivisible particles, very smaller particles, tiny particles called as quarks. Okay, so what is the composition of protons as per the quark? Proton consists of 3 quarks. Okay, proton consists of 3 quarks, UUD, like I have shown here. UUD 3 quark से प्रोटॉन बना होता है. ओके, दो अप, U मीन्स अप, ओके, अप अप डाउन. प्रोटॉन 2 अप कॉर्क से बना है और एक डाउन कॉर्क से बना है ना. एंड एवरी कॉर्क हैज़ इट्स ओन मास एंड चार्ज, एंड इट्स द sum of these charges and mass
of these three quarks UUD will equal to the overall mass and charge of that proton. Okay, so proton consists of UUD, 3 quarks. Neutron again consists of 3 quarks, DDU, like I have shown here, UDD, 1 up quarks and 2 down quarks. Okay, अगर आपको इनका चार्ज देखना है तो अप कॉर्क के ऊपर +2/3 चार्ज होता है. ओके, एंड डाउन कॉर्क के ऊपर -1/3 चार्ज होता है. अप कॉर्क पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और डाउन कॉर्क पे नेगेटिव चार्ज होता है. अप कॉर्क का जो चार्ज है उसकी अमाउंट है वो +2/3 होती है, और डाउन कॉर्क की जो चार्ज की अमाउंट है वो -1/3 होती है. ओके, क्वेश्चन में आस्क इन MCQ टाइप क्वेश्चन, in MCQs, what is the charge on up quark, what is the charge on down quark, or what is the composition of proton, what is the composition of neutron. So you should remember this. Proton consists of 3 quarks UUD, neutron consists of 3 quarks UDD. Okay, let us go ahead. Representation of a chemical element in nuclear chemistry. So in nuclear chemistry, every element is written like this. I have taken as an example X. X is not a symbol of any element. In general, X is any element. So at the lower left corner, Z is written. Z means atomic number of that element. Okay, every element has 3 numbers. One is Z, one is N, one is A. Okay, so what is the Z? Z is atomic number. What is atomic number? It is the total number of protons in the nucleus of that particular atom. Okay, X एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्जेस है, कितने प्रोटॉन्स है, इसको हम Z कहेंगे. ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. देन N, कैपिटल N देखो क्या इंडिकेट करता है. अगर एलिमेंट के लोअर राइट साइड में N नंबर रहते, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वहाँ पे अगर 6 लिखा है तो समझने का वो एलिमेंट के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है. वहाँ पे अगर 8 लिखा है तो समझने का 8 न्यूट्रॉन्स है. ओके, एंड व्हाट इज़ A? A is the mass number. A is the mass number. It is nothing but the sum of Z and N. A is the mass number which indicates total number of protons and neutrons present in the nucleus of that particular atom. Okay, and it is written at the top, either left hand side or right hand side. top में लिखते हैं एलिमेंट के, और ये मास नंबर बताता है ये नंबर. एंड मास नंबर मीन्स it is the sum of total number of protons and neutrons, means A is equal to Z plus N. Okay, and what I consider a basic nuclear equation you should remember while studying nuclear chemistry is 1 proton plus 1 electron is equal to 1 neutron. Okay, 1 proton plus 1 electron is equal to 1 neutron. You always remember this. It will work in many cases for you to solve the questions of nuclear chemistry. See here, अगर आप इसको गौर से देखेंगे इक्वेशन को, प्रोटॉन पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में लोअर कॉर्नर पे 1 लिखा है, मीन्स इट इज़ Z वैल्यू. उस पर चार्ज कितना है? +1 है, और ऊपर लिखा है उसका मास 1 है. ओके, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे उसका जो चार्ज है वो -1 है, और उसका मास जो है तो निग्लिजिबल है, उसको 0 कंसिडर करते हैं हम. तो इस तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया ओवरऑल? इज इक्वल टू 0 हो गया. देखो न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है राइट हैंड साइड में, अगर आप देखेंगे N हैज़ 0 चार्ज. ओके, प्रोटॉन का मास 1 है, इलेक्ट्रॉन का 0 है. 1 + 0 इज इक्वल टू 1. देखो न्यूट्रॉन का मास 1 हो गया, है ना. इसी तरह कोई भी न्यूक्लियर का इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो, है ना. जस्ट उसके चार्जेस के टोटल करो. लेफ्ट हैंड साइड में लोअर साइड में जो नंबर होता है ये चार्ज होता है, +1 - 1 इज इक्वल टू 0, है ना.
तो उधर के भी जो राइट हैंड साइड के जो भी पार्टिकल्स है उनके भी चार्जेस की टोटल 0 होनी चाहिए। इसी तरह मास अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इज इक्वल टू भी टोटल मासेस 1 होने चाहिए, है ना। इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स में। फिलहाल बेसिक न्यूक्लियर इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन। ओके, लेट अस गो अहेड। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स। Okay, on the basis of Z, N and A values, the nuclides, all the nuclides are classified into 4 categories: isotopes, isotones, isobars and isomers. Okay, we will see one by one. अगर कोई दो न्यूक्लाइड का की Z वैल्यू सेम है, अगर कोई भी 2-3 न्यूक्लाइड्स की Z वैल्यू सेम है तो उनको कहा जाएगा आइसोटोप्स। आइसो मीन्स सेम एंड टोप्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, आइसो मीन्स सेम एंड टोप मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स हमको क्या चेक करना है, उनकी Z वैल्यू चेक करनी है। ओके, कोई भी दिए गए एलिमेंट्स की Z वैल्यू आप चेक करो, अगर वो सेम है तो वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हो, देखो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। व्हाट इज दिस 12, 13, 14? These numbers are indicating mass number. Okay, these are indicating mass number. Are they same? वो same है क्या? नहीं, है ना, they are different. So what is same? Look at now Z values. क्या है सबकी Z value? सभी कार्बन से देखो तो सबका Z is equal to 6 रहेगा, isn't it? सबका Z वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा, 6 रहेगा। तो they have same Z values means they are isotopes. Carbon 12, carbon 13, carbon 14 are isotopes. Okay. Then see hydrogen, deuterium and tritium, H1, H2 and H3. Okay, all these three are what? They have same Z values, है ना। तीनों भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, उनके मासेस भले ही अलग है लेकिन उनकी Z वैल्यूज़ क्या है? सेम है ना, दे हैव सेम Z वैल्यूज़। इसी तरह नाउ यू कैन सी द Na22, Na23, Na24 ऑल हैव Z इज इक्वल टू 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। सो सेम Z वैल्यूज मीन्स दे आर आइसोटोप्स। ओके, तो जैसे ही आपको पूछा जाए कि दीज 2 न्यूक्लाइड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, अगर उनकी Z वैल्यू सेम है तो आप फ़ौरन उसका आंसर लिख देंगे, दे आर आइसोटोप्स बिकॉज दे हैव सेम Z वैल्यूज़। ओके, तो ये तीनों एग्जाम्पल से हमको ये पता चला कि आइसोटोप्स आर द न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट। देखो ऊपर के तीनों भी कार्बन है, उसके बाद तीनों भी हाइड्रोजन है, तीनों भी सोडियम है ना। दे आर न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट मीन्स देयर Z वैल्यू इज सेम, ओनली व्हाट इज डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स, हेंस देयर मास नंबर इज डिफरेंट। ओके, देन नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल, सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लाइड्स, आइसोटोन्स। आइसो मीन्स सेम and tones means number of neutrons. Okay, the nuclides which have same number of neutrons we will call them isotones. Okay, iso means same, tone means number of neutrons. तो हमको ऐसे न्यूक्लाइड अगर दिखाई दे कि जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हो कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 14। ओके, कार्बन 13, कार्बन का मास 13 मास वाला कार्बन, नाइट्रोजन 14, इस नाइट्रोजन का मास 14 है। नाउ लुक एट द मासेस 13 एंड 14, दे आर डिफरेंट। नाउ लुक एट देयर एटॉमिक नंबर, Z वैल्यूज़। उनकी Z वैल्यू क्या है? कार्बन की 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो Z वैल्यू भी उनकी अलग अलग है। सो दे आर नॉट आइसोटोप्स। सो व्हाट इज़ द सेम? सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन 13 के अंदर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वो कितने? 7 है। कितने? 7। एंड इस नाइट्रोजन 14 में भी अगर आप देखेंगे अगेन देयर आर 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, कैसे पहचानेंगे आप कि इस कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन है? जस्ट सी मास नंबर दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 13 और Z वैल्यू आपको पता है कार्बन की 6 है। ओके, सो A इज इक्वल टू Z प्लस N। A मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो 13 ये मास नंबर है एंड इज इक्वल टू
Z प्लस एन, Z वैल्यू 6 तो ऑफकोर्स N कितनी आएंगी, 7 आएंगी। इसी तरह यहाँ पर भी नाइट्रोजन 14 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 न्यूट्रॉन रहेंगे रिमेनिंग, है ना। सो दे हैव सेम N वैल्यूज, हेंस दे आर आइसोटोन्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम 23 एंड मैग्नीशियम 24। सी उनमें मास सेम नहीं है, उनमें Z वैल्यूज सेम नहीं है, मीन्स व्हाट इज़ द सेम इन देम, N वैल्यू विल बी द सेम। दोनों के अंदर आपको N वैल्यू मिलेंगी 12, ओके। दोनों के अंदर 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सो दे आर आइसोटोन्स, ओके। लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड क्लास ऑफ न्यूक्लाइड्स, आइसोबार्स। आइसो मीन्स सेम and bars means a mass, their masses, bars. So they have same mass number, isobars. So it is very simple to identify. Carbon 14, nitrogen 14, they have same mass number, they are isobars. Hydrogen 3 means tritium and helium 3, they have same mass numbers, same A values, okay, they are isobars, as simple as it can be. Now there are fourth category of nuclides, isomers. Isomers means they have all same Z value, same N values and same A values, okay, very funny. Like bromine 80, ये भी bromine 80 है इसका, और ये भी bromine 80 है, दोनों का मास नंबर 80 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 35, सो ऑफकोर्स दोनों का न्यूट्रॉन भी सेम होगा 45, है ना। जब मास सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो न्यूट्रॉन भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज A इज इक्वल टू Z प्लस N। मीन्स आइसोमर्स हैव ऑल सेम Z, N and A values. So what is the different in them? So they are differ in energy states. One nucleus is at higher energy level and another its isomer is at lower energy level, okay. And the nuclide which is in higher energy level in excited state, we call it a metastable nuclide, okay. The isomer which is at higher energy level is called as metastable nuclide, and the isomer which is at lower energy level at ground state is called as stable nuclide, okay. Another example of isomers is cobalt 60 and cobalt 60 excited state. देखो जो एक्साइटेड स्टेट में उसको आइदर एस्टेरिस्क बताया जाता है उसके हेड पे, जैसे कोबाल्ट के ऊपर मैंने स्टार बनाया हो देखो, है ना, और यू कैन राइट ए स्मॉल m एज अ सफिक्स टू इट्स मास नंबर। जैसे ब्रोमीन में 80 m लिखा हूँ मैंने, है ना, 80 के आगे स्मॉल m लिखा है। दिस स्मॉल m इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ मेटास्टेबल न्यूक्लाइड, ओके। जो मेटास्टेबल होता है, हायर एनर्जी स्टेट को होता है, तो उसके ऊपर ये लिखा जाता है, ओके, m लिखा जाता है मास नंबर के आगे। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर classification of nuclides on the basis of origin. There are only two classes of these nuclides on the basis of origin: naturally occurring nuclides and artificial nuclides, okay. Name itself indicating the meaning. Naturally occurring, all the elements which occurs in nature are called as naturally occurring nuclides, and generally, you know, periodic table contain 118 elements. So out of those, up to uranium 92 are all occurs in nature and are naturally occurring nuclides. Many examples you can give among them. Artificial nuclides, they are also called as synthetic or man-made nuclides. So all the elements which are synthesized in laboratories are called as artificial nuclides, okay. And generally all the elements beyond uranium 92 are artificial, as they do not occur in nature. So one thing I want to mention here, question may be asked in MCQs. The elements which occurs which are followed by uranium 92 in the periodic table are called as transuranic elements.
जितने भी एलिमेंट्स यूरेनियम 92 के बाद आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सबको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है. ओके, सो इंक्लूडिंग दिस ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, many other synthetic nuclides are there which are called as artificial nuclides, है ना. एग्जाम्पल नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम I have given here. Now let us see classification based upon stability. So on the basis of stability also there are only two classes of nuclides. One is stable nuclides, another one is unstable nuclides. Okay, दो ही क्लासेस बनते हैं, एक तो स्टेबल रहेंगे या तो अनस्टेबल रहेंगे. तो टोटली यू नो दिस थिंग यू मस्ट नोट, there are around more than 2000 nuclides known till date. Under the study of science there are more than 2000 nuclides. So among those only 274 nuclides are stable. Number of stable nuclides कितने हैं? सिर्फ 274. 274 nuclides are stable nuclides, and all other nuclides, you know, I have told you just there are more than 2000 nuclides known. Okay, more than 2000 nuclides under study. So among those only 274 nuclides are stable and all other nuclides are unstable. Okay, are unstable, and unstable nuclides are also called as radioactive nuclides, because unstable nuclides emits nuclear radiations or nuclear particles, while stable nuclides do not emit any nuclear radiation or nuclear particles. They are stable forever, while unstable nuclides are unstable, they are radioactive and are able to emit nuclear radiations or particles. You can also note here one point, all the elements beyond bismuth 83 or all the elements which have mass number equal to or greater than 210 are unstable. All the nuclides of the elements with mass number greater than or equal to 210, or you can say all the nuclides beyond bismuth 83 are unstable and emits nuclear radiations or particles. Okay, so these are the classifications on the basis of stability, stable nuclides, unstable nuclides. Then we have seen on the basis of origin, natural and man-made nuclides, and we have seen classification on the basis of Z, N and A values, isotopes, isotones, isobars and isomers. Let us see the next slide. Radioactive decay. The process by which a radioactive nuclide gets converted into stable nuclide, a process by which unstable nuclide gets converted into stable nuclides. In the process they emits nuclear radiations. Okay, this is important. A process by which radioactive nuclide emits nuclear radiations or nuclear particles is called as radioactivity. Radioactivity are of different types. Depending upon what radioactive nucleus emits, it has different types. First see emission of beta minus, beta decay. Emission of beta minus particle अगर हो रहा है किसी न्यूक्लियस से तो उसको बीटा डीके कहा जाएगा. और दिस इज अ टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इन विच बीटा माइनस पार्टिकल इज इमिटेड. यू नो बीटा माइनस पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. बीटा माइनस पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है. सो अगर किसी न्यूक्लियस एक्स न्यूक्लियस से जिसका देखो एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, यहाँ पे दिखाया गया एग्जांपल में, अगर ये बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो उसका जो मास है ये नहीं बदलेगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता. ओके, तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल अगर इमिट हो रहा है तो A वैल्यू चेंज नहीं होगी. जो Y न्यूक्लियस जो बन रहा है प्रोडक्ट उसमें A वैल्यू सेम रहेंगी, A का A रहेगा, लेकिन Z में +1 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर जो उसका 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज बाहर निकला है ना. तो उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को Z+1 कर देना है हमको, है ना. इसके एग्जांपल हम देखेंगे. जैसे अगर समझ लो कि सोडियम, अगर सपोज सोडियम 23 अगर कोई बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है बीटा माइनस, तो हमको क्या करना है? सोडियम की Z वैल्यू 11 है, उसमें +1 करना है. तो 11 + 1 = 12. सोडियम 23 अगर बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो उससे मैग्नीशियम बन जाएगा, क्योंकि Z+1 हो जाएगा, 11 की जगह 12 हो जाएगा. जो प्रोडक्ट Y जो बन रहा है यहाँ पे
तो ये मैग्नीशियम बन जाएगा अगर आप सोडियम से शुरू करेंगे तो, है ना, बिकॉज आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल Z इज increased by 1, A remains same. Okay. Similarly, if positron is emitted, है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है. अब अगर पॉजिट्रॉन अगर इमिट होता है तो उसको भी मास नहीं रहेगा तो A सेम रहेगा, लेकिन Z में चेंज होगा. जब बीटा माइनस इमिट हो रहा है तो Z प्लस 1 किए थे हमने, अब बीटा प्लस इमिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, Z माइनस 1 करेंगे. अगर सपोज़ आप यहाँ पे सोडियम से शुरू करते हैं, अगर ये पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है तो आपको इसका जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो Z माइनस 1 रहेगा, मीन्स नियॉन रहेगा, नियॉन 10. सोडियम इसका एटॉमिक नंबर Z वैल्यू 11 है तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो नियॉन 10 रहेगा, बिकॉज Z माइनस 1 करना है आपको, है ना. सिमिलरली अल्फ़ा डीके अगर हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस जिसमें Z वैल्यू 2 होती है और A वैल्यू 4 होती है. तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर अल्फ़ा डीके अगर हो रहा है कोई न्यूक्लियस से तो उसका प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करना है, उसके अंदर आपको Z माइनस 2 करना है और A माइनस 4 करना है. उसकी Z वैल्यू 2 से कम करनी है और A वैल्यू जो मास नंबर है वो 4 से कम करनी है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेडॉन लेते हो, रेडियम लेते हो, रेडियम 88, तो इसका अगर आपको अल्फ़ा पार्टिकल अगर इससे निकलता है तो उसकी Z वैल्यू 2 से कम हो जाएंगी, मीन्स 86 हो जाएंगी और आपको रेडॉन मिलेगा, है ना. अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम 12, अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है तो Z माइनस 2 होगा और उससे नियॉन मिल जाएगा आपको, है ना, Z इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा. ओके. इसी तरह फोर्थ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो गैमा डीके के नाम से जाना जाता, इसके अंदर क्या होता है, इमिशन ऑफ गैमा रेज होता है ना, जो हम कह रहे हैं ना न्यूक्लियर रेडिएशंस, तो वो ये है ना. पार्टिकल तो हमने सीख लिए, बीटा माइनस, बीटा प्लस और अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स है जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स इमिट करते हैं. लेकिन समटाइम्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स ओनली इमिट्स ए न्यूक्लियर रेडिएशंस, मीन्स गैमा रेज, और ये गैमा रेज के इमिशन को बोलते हैं गैमा डीके. ओके. इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लाइड होता है, जो हायर एनर्जी स्टेट को होता है, ये लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और सिर्फ गैमा फोटॉन्स इमिट करता है ना. इसके अंदर कोई Z वैल्यू चेंज नहीं होंगी, N वैल्यू चेंज नहीं होंगी और A वैल्यू भी चेंज नहीं होंगी. जैसे एग्जांपल हमने देखे थे कि मेटास्टेबल न्यूक्लाइड जो होता है हायर एनर्जी स्टेट को, ये जब ग्राउंड स्टेट को आता है तो एक्सेस एनर्जी जो इसके पास होती है वो एज अ गैमा फोटॉन इमिट करता है ना. ब्रोमीन 80M का एग्जांपल देखे थे, ये अगर ब्रोमीन 80 को आएगा तो क्या इमिट करेगा, गैमा रेज इमिट करेगा. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग carefully to my video. Also subscribe to our channel JET Arts Science and Commerce College on YouTube. Thank you very much.